Hello, my dear friends. After a small vacation, let us start once again our syllabus. And now I am going to start chapter number 10 Hello Alkanes and Hello Arenes. That is very easy chapter and important chapter so far as the examination is concerned and competitive part is also concerned. So let us first introduce what are called the Hello Alkane and Hello Arenes. So it is very easy thing. If we have any alkane, suppose we have methane. If by any reaction of one hydrogen of methane is replaced by one halogen, then we get CH3X, and this X may be fluorine, chlorine, bromine, iodine. If it is a fluorine, then it is called fluoromethane. Is chlorine, then chloromethane. Bromine, then bromomethane. Iodine, then iodomethane. Suppose our alkane is ethane C2H6, and if one hydrogen of alkane, means here alkane is taken ethane, if this one hydrogen is replaced by any halogen, say chlorine, by removing one hydrogen by any reaction, then we get CH3 CH2Cl, and this is nothing but chloroethane, or common name is ethyl chloride. Common name is ethyl chloride. Now read what is written there. Just I explained you. This is nothing but the replacement of one hydrogen atom or atoms of saturated aliphatic hydrocarbon or aromatic hydrocarbon by halogen atoms. And halogen atoms I explain you: chlorine, bromine, from fluorine, iodine, like that. So we get, if hydrocarbon is the saturated aliphatic hydrocarbon, then we get alkyl halide. If they are the aromatic hydrocarbon, then we get aryl halide. Aryl halide. Okay. See, if we take benzene, and if you know that at the sixth corner of benzene, six hydrogens are there. If any one hydrogen is replaced, you can replace all six hydrogen at a time also. But if any one hydrogen of benzene is replaced by halogen, then it is called, this is nothing but benzene, and we get, by replacing one hydrogen by halogen, then we get halobenzene. Halobenzene. See, if this one is the chlorine, then it is chlorobenzene, fluorine, then fluorobenzene, bromine, then bromobenzene, iodine, then iodobenzene. This reaction is the special reaction of addition, but here I want to explain you actually what is the haloalkane. Haloalkanes can be prepared from aliphatic hydrocarbon. Haloarenes can be prepared from aromatic hydrocarbon, and especially in this chapter we have to use this benzene ring. Okay friends, now here it is written hydrogen atoms by carbon atoms. So see, if methane is there, so all these four hydrogen is replaceable. If one hydrogen replaced by chlorine, then CH3Cl, chloromethane. If two hydrogen replaced by, then it is called CH2Cl2, dichloromethane. If three hydrogen replaced by three chlorine, then CHCl3, chloroform. And if all four hydrogen replaced by chlorine atom, then CCl4, carbon tetrachloride. So here not only one hydrogen atoms can be replaced by successive halogenation. Similar way on benzene ring, on aromatic ring also. See, if on this benzene, if one hydrogen is replaced, then it is called chlorobenzene. If two replaced, then 1,2-dichlorobenzene, like that. 1,2-dichlorobenzene. If three hydrogen replaced, then 1,2,3-trichlorobenzene. But to remove more
and more hydrogen in aromatic ring is difficult one. So majority we have to do the mono substitution in this chapter. Another thing, if we consider haloalkanes, see, for example, CH3Cl, CH3CH2Cl, chloromethane, chloroethane, okay, like that. You can take propane, pentane, hexane, heptane, like that, okay. So all the carbon in haloalkanes are sp3 hybridized. So there is one formula. You can calculate the number of sigma bonds. Here 4 sigma bonds. So there is a sp3 hybridization. Here this carbon attach the halogen attached with a carbon. That carbon is always sp3 hybridized. So read this statement: in haloalkane contains hydrogens atoms bonded to always sp3 hybridized carbon. Okay, so halogen containing carbon in haloalkane is always sp3 hybridized. Or you can say, here I have written specific halogen, you can say in general term it is a sp3 hybridized always. On benzene ring, the halogen containing carbon, see here, if one hydrogen is replaced by one halogen, then this carbon is sp2 hybridized. Already you know very well. So this is nothing but the introduction of what is haloalkane and what is haloarine. Write down these 2 points only. Just I explain you how haloalkane and haloarines can be prepared. Okay, this is the only introduction. Which things you have to keep in mind here? Saturated aliphatic hydrocarbon gives us alkyl halide, and aromatic hydrocarbon gives us aryl halide. Remember this thing. Okay. Another thing, in haloalkane carbon is sp3 hybridized. In haloarine carbon is sp2 hybridized. Is it clear? So let us move to the next question. So let us discuss about the how and why we have to study this chapter. हमको ये चैप्टर जो है वो क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमारी लाइफ में हेलोअल्केन हेलोएरिन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं. कैसे रखते हैं ये देखते हैं. 4-5 पॉइंट्स जो है इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव में काम आ सकते हैं. तो एक तो ये है कि हेलोअल्केन हेलोएरिन्स जो है वो बहुत ही बढ़िया सॉल्वेंट होते हैं, यूज्ड एज अ सॉल्वेंट्स, एंड दे आर द नॉन पोलर, रिलेटिवली नॉन पोलर कंपाउंड्स. जो नॉन पोलर कंपाउंड्स है वो आपको पता है कि पानी में सोल्यूबल नहीं होते हैं, तो दे यूज्ड एज अ सॉल्वेंट. आपको पता है कि हम कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो सॉल्वेंट में यूज़ करते हैं. ये एक अच्छा सॉल्वेंट है. कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो बहुत बढ़िया सॉल्वेंट है, और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है. जहाँ पानी नहीं काम आता है वो यहाँ पे ये कार्बन टेट्राक्लोराइड काम आता है. ओके. और एक बढ़िया बात यहाँ पे बताई है वो है कि दीज आर यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर सिंथेसिस ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि जैसे मेरे पास बेंजीन है और आपको बताया जाए कि बेंजीन में से आप फिनोल बनाओ. आपको पता है फॉर्मूला फिनोल का. तो दिस थिंग इज डिफिकल्ट थिंग टू मेक फिनोल फ्रॉम बेंजीन by conversion or by any specific reaction. It is very difficult thing. लेकिन मैं अगर हेलोअल्केन हेलोएरिन वाया करके जाता हूँ तो मुझे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो बहुत इजीली मैं मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ. वही फिनोल में अगर इस ट्रैक पे जाता है, बेंजीन का फर्स्ट स्टेप में मैं क्लोरोबेंजीन बना लेता है ऐसे, ये क्लोरोबेंजीन, और इस क्लोरोबेंजीन में मैं इजीली अगर NaOH डालता तो ये NaCl निकल जाता और OH इजीली बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाता. तो ये जो है हेलोएरिन, यहाँ पे हेलोएरिन मैंने आपको लेके समझाया है. इसी तरह हेलोअल्केन भी
Same way, haloalkane also useful to prepare wide varieties of this type of organic compounds. जैसे कोई अल्केन है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास CH4 है, उसमें से मैं मिथेनॉल बनाना चाहता हूँ CH3OH, तो ये बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन टू इंट्रोड्यूस वन OH ग्रुप, ऐसे कई रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे रिएक्शन है। तो हेलो अल्केन, हेलो एरिन जो है वो एक स्टार्टिंग मटेरियल रहता है कि भाई आपको मीथेन में से मिथेनॉल बनाना है, तो पहले एक काम करो, उसका क्लोरोमीथेन बना लो। अब जो रिएक्शन जाएगा वो बहुत इजी जाएगा, ये बहुत इजी, क्योंकि ये सब बॉन्ड नॉन पोलर है। ये जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है ये पोलर है, ये पोलर हो जाता है तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग इजीली हो जाता है और नया ग्रुप हम इजीली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि OH ग्रुप ही इंट्रोड्यूस करना है, कोई भी नया ग्रुप आप अल्केन और एरिन में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो हमें वाया हेलो अल्केन या हेलो एरिन जाना पड़ता है। या तो आप स्टार्टिंग मटेरियल ही ये मीथेन को छोड़ो, अब सीधा क्लोरोमीथेन ले लो, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो हमें वही लेना है, हेलो अल्केन या तो हेलो एरिन, ताकि हम वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सके। तो ये वाला रिएक्शन जो है वो बहुत इजी जाता है। अगर आप इसका मीडिएशन नहीं लेते हो और ये रिएक्शन डायरेक्ट करते हो तो ये डायरेक्ट बहुत डिफिकल्ट होता है। आगे समझ में बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरेम्फेनिकोल, this is a chlorine containing antibiotic, the medicine used to kill germs in our body, and antibiotics are generally produced by microorganism। तो एक आजकल मार्केट में बहुत एंटीबायोटिक माइक्रो एंटीबायोटिक जो है वो चल रही है, एंटी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से प्रोड्यूस होती है। तो दिस क्लोरम्फेनिकोल is very useful, very effective nowadays in a typhoid fever। अब जब भी टाइफाइड की ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको किसी ना किसी फॉर्म में डॉक्टर क्लोरम्फेनिकोल देंगे। तो क्लोरम्फेनिकोल एक्चुअली एक दो फंक्शनल ग्रुप और भी है, लेकिन उसमें जो है हेलोजन फंक्शनल ग्रुप आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन है जिसका नाम है थायरोक्सिन। ठीक है, बायोलॉजी में ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर ये थायरोक्सिन सही मात्रा में नहीं निकलता है हमारी बॉडी में से, देन व्हाट हैपन्स इज इट कॉजेज डिसीज कॉल्ड गोइटर। ये आपको पता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये थायरोक्सिन है क्या, तो दिस थायरोक्सिन इज आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड है, लेकिन इसमें आयोडीन, तभी तो एडवर्टाइजमेंट में आता है कि आपको आयोडाइज सोल्ट खाना चाहिए। आयोडीन की कमी नहीं रहनी चाहिए। आयोडीन की कमी से क्या होता है, गोइटर होता है। ठीक है, तो ये थायरोक्सिन जो हार्मोन है हमारी बॉडी में, तो ये थायरोक्सिन एक्चुअली आयोडीन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, आयोनिक कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, और आजकल आप लोग ये जो माहौल चल रहा है तो उसमें एक मेडिसिन का हाइड्रोक्लोरोक्विन का आप नाम सुनते हो, जो एक्चुअली हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है, जो कोरोना डिसीज में बहुत इफेक्टिव है, एक्चुअली उसका यूज़ मलेरिया डिसीज में होता है। ठीक है, तो ये सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड्स जो है क्लोरोक्विन, जिसको हाइड्रोक्लोरोक्विन भी बोलते हैं, तो ये मलेरिया की ट्रीटमेंट में काम आता है, लेकिन आजकल जो है वो कोरोना डिसीज के ट्रीटमेंट में भी लोग काम में ले रहे हैं। ठीक है, और एक बात है, हेलोथेन इज यूज्ड एज एनास्थेटिक। एक बहुत बढ़िया एनास्थेटिक मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। आपको पता है पुराने ज़माने में जो है वो ऑपरेशन से पहले एक डॉक्टर इंजेक्शन देते थे। ठीक है, आजकल भी दे रहे हैं, लेकिन आजकल थोड़ा जो है उसमें मिक्सिंग और मेडिसिन का आ गया, लेकिन प्योर क्लोरोफॉर्म जो है वो एनेस्थेटिक है। पोस्ट ऑपरेशन से पहले, मतलब कि ऑपरेशन से पहले पेशेंट को दिया जाता है सर्जरी के दरमियान। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं,
फ्लोरिनेटेड कंपाउंड, फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड, पूरा फ्लोरिनेटेड होना चाहिए, तो ब्लड सब्स्टिट्यूट्स के काम आता है सर्जरी में। जब भी किसी पेशेंट की सर्जरी हो रही है, जैसे कि हेमोग्लोबिन है, ज़्यादा ब्लड या तो खून निकल जाता है, ठीक है, तो पेशेंट की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको वेंटिलेटर पे रखा जाता है, तो उस टाइम पे उसको टेम्पररी ये फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स दिए जाते हैं जो ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर सकते हैं, पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी जो है वो महसूस नहीं होती। तो ये जो फ्लोरिनेटेड कंपाउंड है, तो मैंने यहाँ पे क्लोरोक्विन, यहाँ पे क्लोरीन का इंपॉर्टेंस दे दिया, फ्लोरिनेटेड यहाँ पे फ्लोरीन का इंपॉर्टेंस दे दिया, ये थायरोक्सिन यहाँ पे आयोडीन का इंपॉर्टेंस दे दिया, ये क्लोरएम्फेनिकोल यहाँ क्लोरीन का इंपॉर्टेंस दे दिया, ठीक है। तो इसी तरह द हैलोजन कंपाउंड्स आइदर दे आर एलिफेटिक और एरोमेटिक, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बहुत बढ़िया काम आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सॉल्वेंट का यूज़ दे दिया, बहुत बढ़िया यूज़ इंडस्ट्री में, ये स्टार्टिंग मटेरियल है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक में से अगर आप दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको वाया हेलो अल्केन RX, वाया हेलो एरिन ARX, ठीक है, ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है। और जनरली हम 12th स्टैंडर्ड में जब भी एरोमेटिक की बात आएगी तो हम बेंजीन रिंग का यूज करेंगे। आई बात समझ में? ठीक से, वेरी गुड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, स्टेट द यूजेस ऑफ हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये आप 1, 2, 3, 4 और 5 यूज अपनी बुक में लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन, हमको क्लासिफिकेशन देना है कितने टाइप के कंपाउंड है, क्लासिफिकेशंस ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। तो आप ये तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे वाले जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आपको ऑब्जेक्टिव में काम आ सकते हैं। आज तक बोर्ड में यूजेस ऑफ हेलो अल्केन हेलो एरिन ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, फिर भी आपको ऑब्जेक्टिव में ये काम आ सकता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन हेलो अल्केन हेलो एरिन कम्स अंडर विच कैटेगरी, ओके, और IUPAC नेम आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। कई तरह से क्लासिफिकेशन किए जाते हैं, उसमें से पहला क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। इसमें कितने हेलोजन एटम्स है उसके बेस्ड ये क्लासिफिकेशन है। एक हेलोजन एटम है, 2 है, 3 है, ठीक है, या तो 4 हेलोजन है। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स and that halogen atoms is introduced by removing the hydrogen atoms. These halogen atoms introduced by removing hydrogen atoms, so they are classified into monohalo, dihalo and polyhalogen. एक हेलोजन है तो उसको मोनो बोलेंगे, 2 है तो उसको डाई बोलेंगे, 3 है तो ट्राई बोलेंगे, 4 हेलोजन है तो टेट्रा बोलेंगे, 5 हेलोजन है तो पेंटा बोलेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो बाद में उसको पोली बोल देंगे। आ गया समझ में? बहुत ही इजी क्लासिफिकेशन है। अब देखिए मैं हेलो अल्केन का, ये जो है वो सब हेलो अल्केन है। जैसे कि ये है इथाइल ग्रुप, इसका आता है C2H6, ये इथेन है, उसका एक हाइड्रोजन
निकाल के उसको बना दिया है C2H5X, ये हेलोजन है। तो एक ही हेलोजन रिप्लेस किया है तो इसको बोलेंगे मोनोहेलो अल्केन। अगर यहाँ क्लोरीन है तो इसको बोलेंगे क्लोरोइथेन, ब्रोमीन है तो ब्रोमोइथेन, आयोडीन है तो आयोडोइथेन, फ्लोरीन है तो फ्लोरोइथेन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये एक्चुअली इथेन ही है, ऐसे सॉरी CH3CH3। ठीक है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक हेलोजन यहाँ पे लगा दिया है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस करके एक हेलोजन यहाँ पे लगा दिया है। तो ये दो हेलोजन अलग अलग कार्बन के ऊपर है। ये भी ध्यान में रखिएगा, आगे क्लासिफिकेशन आएगा कि एक ही कार्बन के दो हाइड्रोजन निकाल के तो फिर वो क्लासिफिकेशन आगे आएगा। ठीक है, ये दोनों कार्बन के ऊपर का हाइड्रोजन निकाल के एक एक हेलोजन लगा दिया है, तो इसको बोलते हैं हम डाई हेलो। ठीक है, ये इथेन ही है, CH3 यहाँ पे एक हेलोजन और यहाँ पे एक हेलोजन। ठीक है, डाई हेलो। उसी तरह यहाँ पे तो दो कार्बन है, तो अब 3 कार्बन वाला ले लो, क्योंकि हमें डिफरेंट कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकालना है। ये इसका नाम बोलो, क्या है इसका नाम? प्रोपेन। बहुत बढ़िया। इसका एक हाइड्रोजन निकाल के यहाँ एक हेलोजन लगा दिया, इसका एक हाइड्रोजन निकाल के यहाँ हेलोजन लगा दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हेलोजन, तो 3 हेलोजन हमने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस 3 हेलोजेंस, इसको बोलेंगे ट्राई हेलो अल्केन। तो इसी तरह से बाय रिमूविंग नंबर ऑफ अब ये पढ़िए एक बार, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस्ड बाय द हेलोजन एटम्स दे क्लासिफाइड इनटू मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा और आगे चल के पॉली। ठीक है, तो अभी आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि अगर ये ऐसे होगा CH3 ये इथेन है, मैंने यहाँ से एक निकाल के लगा दिया हेलोजन, कोई भी X समझ लो, यहाँ पे मैंने निकाल के और X लगा दिया, यहाँ पे तो कुछ नहीं किया, इसी कार्बन पे मैंने 2, तो ये क्लासिफिकेशन आएगा आगे कि मैं एडजेसेंट कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ और सेम कार्बन से दोनों हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ, तो वो क्लासिफिकेशन आगे आएगा। ठीक है, अभी तो यही सोचना है कि ये हम एक इंट्रोड्यूस करते हैं तो मोनो, डाई एंड ट्राई, आधा क्लासिफिकेशन खत्म। अब चलते हैं, ये बहुत ही इजी है, इसमें तो कोई ड्युअलिटी है ही नहीं। अगर बेंजीन के ऊपर एक हेलोजन हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको बोलेंगे मोनो हेलो एरिन, 2 हेलोजन इंट्रोड्यूस करते हैं तो डाई हेलो। अगर ये दो आपको पता है 11 में आपने पढ़ा है, या तो ऑर्थो पे होंगे या तो पैरा पे होंगे। ठीक है, आप X भी यूज़ कर सकते हो या पर्टिकुलर हेलोजन भी ले सकते हो। तो ये भी बहुत इजी है, देखिए 1 हेलोजन मोनोहेलो एरिन, ये एरिन इसलिए है क्योंकि एरोमेटिक रिंग है, वो आपने पढ़ा है 11th में। यहाँ 3 है, 3 हेलोजेंस आर इंट्रोड्यूस्ड, X सक्सेसिवली इंट्रोड्यूस्ड। ऐसा भी नहीं है, आप ऐसे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, यहाँ पे X और यहाँ पे X, ये इसकी कंपैरिजन में ये ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, तो ये भी ट्राई हेलो है, ये भी ट्राई हेलो है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये बेंजीन रिंग है, एक हेलोजन यहाँ पे, एक हेलोजन यहाँ पे, एक हेलोजन यहाँ पे, ये भी ट्राई हेलो है। वैसे भी डाई हेलो में भी ऐसा हो सकता है, X ये भी डाई हेलो है, ये ऐसा भी हो सकता है, ये भी डाई हेलो है, ऐसा भी हो सकता है पैरा पोजीशन में, ये भी डाई हेलो है, ये सब कंडीशन में डाई हेलो ही है। अब आप ऐसे लिखेंगे X और X, और दूसरा आप बोलेंगे कि ये X और ये X, तो ये जो है 2X, ये भी ऑर्थो पोजीशन, ये भी, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों कंपाउंड सेम है। ठीक है, तो
ये तो मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, आपको समझना इतना ही है इसमें कि एक हेलोजन बेंजीन के ऊपर मोनो, 2 हेलोजन डाई और 3 हेलोजन ट्राई। ठीक है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। तो ये 2 मार्क्स में आ भी सकता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। ये फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन आपका हुआ। ठीक है, चलिए दूसरे क्लासिफिकेशन के ऊपर जाते हैं, सेकंड टाइप का। अब क्वेश्चन आप लिख लीजिए। ठीक है, वो ये भी बहुत ही इजी है। तो क्लासिफिकेशन जो इसमें समझाना है हमको, वो क्लासिफिकेशन सिर्फ मोनोहेलोजन कंपाउंड्स का समझाना है, जिसमें जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए कि ऐसे हेलो अल्केन का क्लासिफिकेशन समझाइए। यहाँ पे हेलो एरिन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आप सोचिए, सोच के मुझे बताइए। चलिए, क्योंकि ये सभी कार्बन जो है वो sp2 है बेंजीन के, और आपको पूछा गया है कि उसी का ही क्लासिफिकेशन दीजिए। गिव क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन कंटेनिंग कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ऑब्वियसली हेलो अल्केन ही आएगा उसमें, तो सिर्फ अल्काइल हैलाइड ही आएगा। तो this classification we can give depend upon the nature of carbon with the halogen bonded. ओके, तो हम 3 टाइप्स क्लासिफिकेशन दे सकते हैं, बहुत ही इजी क्लासिफिकेशन है। एक है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। समझाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप देखते ही समझ जाओगे कि व्हाट आई मीन टू से। अगर हेलोजन कंटेनिंग कार्बन एक भी कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, ये एग्जांपल यहाँ पे नहीं है, आप जरा इसको ऐड कर लेना। एंड सी दिस हेलोजन कंटेनिंग कार्बन, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बन और कार्बन के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये प्राइमरी हेलो अल्केन। कैसा हेलो अल्केन है, प्राइमरी। अगर कंडीशन ऐसी है, ये हेलोजन और एक कार्बन, या तो आप आर ग्रुप भी बोल सकते हो, इफ हेलोजन कंटेनिंग कार्बन कनेक्टेड विथ one alkyl group or one carbon, then it is also called primary। ये वाला देख लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पे, CH3CH2Cl। तो ये कार्बन के पास हेलोजन है, वो एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो ये प्राइमरी है। एक एग्जांपल ये भी है, CH3Cl, ये कार्बन के साथ हेलोजन है, तो ये कार्बन और किसी भी कार्बन के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये भी है प्राइमरी। लेकिन अगर हेलोजन कंटेनिंग कार्बन कनेक्टेड विथ और 2 कार्बन, अदर 2 कार्बन, देन इट इज कॉल्ड सेकेंडरी। यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि ये हेलोजन कंटेनिंग कार्बन है, ये और एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है, और एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है, और ये हाइड्रोजन है। तो ये हेलोजन कंटेनिंग कार्बन जो है वो तो है sp3। आपको एक बात तो खास ध्यान में रखनी है कि ये कार्बन ऑलवेज sp3 होना चाहिए, sp3। लेकिन यही कार्बन और 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड है, जो जनरल फॉर्मूला में हम r डैश r डबल डैश ऐसा लिखते हैं, या तो r r डैश भी आप लिख सकते हैं। तो अगर ये कार्बन और 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड है तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी हेलो अल्केन। अब इसको समझाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया, फिर भी मैं आपको एक बार समझा दूं कि इफ कार्बन, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन इज sp3 hybridized and it connected with a 3 alkyl group, or you can say 3 carbon, then that halogen is the tertiary, that हेलो अल्केन इज द टर्शरी हेलो अल्केन। मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, ये X की जगह पे आप क्लोरीन रख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। अगर दिस कार्बन is a sp3 and if it is connected with a 3 carbon, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं क्लोरीन रखता हूँ, क्लोरीन, तो इसका यूपीएससी नाम क्या होगा बताइए? 1 2 3 2 मिथाइल 2 क्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो नहीं हमने देखा, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है ना। हाँ, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, तो 2 मिथाइल 2 क्लोरो, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसका कोई सफिक्स नहीं है सेकेंडरी, तो इसको सब्स्टिट्यूट ही गिनना है, ठीक है। तो हम बोलेंगे 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो ये टर्शरी है। सेकेंडरी का भी आप नाम दे सकते हो। ये तीन जो है, जब आप बुक में लिखेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है वो जनरल फॉर्मूले हैं। जब आप बुक में लिखेंगे तो आप एक एक का एक एक एग्जाम्पल देंगे, अपने आप बनाएंगे, ठीक है। तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे आपको समझाया है, हालांकि ये क्लासिफिकेशन का पार्ट नहीं है, फिर भी आपको एक जनरल रिएक्शन यहाँ पे दिया है जो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया, आई एक्सप्लेन यू इन फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ alkane. By removing one hydrogen, if one halogen is added, then we get the general formula is H2N. एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो +2 की जगह पे +1 और हाइड्रोजन की जगह पे आ जाता है X। तो ये जो है जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोहेलो अल्केन। एक हेलोजन आप जब इंट्रोड्यूस करते हो तो ये जो है वो आप फर्स्ट क्वेश्चन में ये जनरल फॉर्मूला जो है वो लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना है तो ये अल्केन का है और ये हेलो अल्केन का है। ओनली वन सब्सटीट्यूशन का, 2 बार हाइड्रोजन निकाल के 3 बार निकाल के नहीं, एक हाइड्रोजन रिप्लेस बाय, यहाँ पे है ही रिएक्शन पे कि एक हाइड्रोजन निकाला है और एक हेलोजन इंट्रोड्यूस किया है। ओके फ्रेंड्स, अभी क्लासिफिकेशन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। मुझे क्लासिफिकेशन जो है आगे, ये क्लासिफिकेशन जो है 4th नंबर क्वेश्चन में, द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहेलोजन कंपाउंड, ये sp3, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन हेलोजन कंटेनिंग sp2 कार्बन, जैसे कि इस कार्बन के साथ हेलोजन है लेकिन ये कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे अब हेलो एरिन भी आ जाएंगे, क्योंकि बेंजीन के सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और आगे अनसेचुरेटेड अगर सिस्टम है तो आज के लिए बस इतना ही। आगे ऐसे अनसेचुरेटेड सिस्टम है, कार्बन सेचुरेटेड नहीं है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो इसको भी अलग नाम दिया जाता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब ये 4 क्वेश्चन आपको लिखना है, प्रिपेयर करना है और ऐसे डेली जैसे आप पहले सबमिट करते थे ऐसे सबमिट भी करवाना है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरा पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। ये अब हम धीरे धीरे डोज बढ़ाएंगे, क्योंकि अब तो वेकेशन का माहौल नहीं रहा। आपको भी पता है मेरे प्यारे बच्चों कि आप 12th में हो, तो आपको भी थोड़ा कोऑपरेट करके काम करना है। ऐसा ही समझ लो कि ये बोर्ड के ऊपर काम है, तो ये आपके ही लिए है। जितना आप सिंसियरली काम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है कि इसमें भी आपको कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। अगर आप ठीक से काम करते हो, अपनी फंडामेंटल ड्यूटी समझ के काम करते हो, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लिख लो। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो बिना संकोच आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हो, ठीक है। आगे हम क्लासिफिकेशन जारी रखेंगे। क्लासिफिकेशन इज़ नॉट ओवर, इट इज़ कंटिन्यू। सो इन नेक्स्ट लेक्चर, अब डेली एक लेक्चर आएगा,
धीरे धीरे हम लेंथ बढ़ाएंगे। तो ये आप थोड़ा बेसिक मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, और एक दो अच्छे क्वेश्चन भी लिए, तो उसको प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।